لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. اور تم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ تیرے پاس پیدل اور سواریوں پر دور دراز علاقوں سے آئیں گے۔ قریباً 4,500 سال پہلے اللہ تعالی کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کے جواب میں لوگ دین و دنیا کی بھلائی اور رب کائنات کی خوشنودی حاصل کرنے دنیا کے کونے کونے سے مکہ معظمہ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور ہر عاقل بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا واحد حج 10 ہجری میں کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے ساتھ ادا کیا، جسے حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مناسک حج اور انتظامی امور سے آگاہی۔ حج قرآن اندازی میں کامیابی کے فوراً بعد عازمین حج کو چاہیے کہ وہ مناسک حج اور دیگر انتظامی امور سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے وزارت مذہبی امور کے حاجی کیمپوں کے ذریعے ہونے والی تربیتی ورکشاپ کے ساتھ ساتھ تربیتی کتابچوں، حج دستاویزی فلم، ٹیلی ویژن، ریڈیو کے پروگراموں اور اپنے علاقوں میں موجود مستند علماء کرام سے رابطہ رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تربیت اور علم کے آپ کا یہ مبارک سفر اپنے اور دوسروں کے لیے زحمت اور پریشانی کا باعث بن جائے۔ سفر حج پر روانہ ہونے سے پہلے رقم یعنی کم از کم 2,000 سعودی ریال کے انتظام کے علاوہ حجی کیمپ سے سفری دستاویزات یعنی پاسپورٹ، ٹکٹ، شناختی لاکٹ وغیرہ بھی حاصل کر لیں۔ پاسپورٹ، ویزے اور ٹکٹ کی فوٹو کاپی بھی احتیاطاً اپنے ساتھ رکھیں۔ دیگر سامان ضرورت میں مردوں کے لیے 2 احرام، 1 احرام کی بیلٹ، مضبوط اور آرام دہ سینڈل اور چپل جس سے پاؤں کے اوپر ابری ہوئی ہڈی ننگی رہے۔ خواتین کے لیے 2 عدد عبایا، وما سکارف، آرام دہ جوتے وغیرہ شامل ہیں۔ روزمرہ استعمال کے 4 جوڑے کپڑے اور عام جوتا، حرم میں جوتے رکھنے کے لیے ڈوری والا چھوٹا تھیلا، پانی کی بوتل، مسواک، برش اور پیسٹ، سوئی دھاگا، دھوپ سے بچاؤ کے لیے چھتری، دستی بیگ جس میں احرام، پاسپورٹ، ادویات وغیرہ رکھی جا سکے، اضافی نظر کی اینک، سامان پر نام لکھنے کے لیے بڑا مارکر، باندھنے کے لیے رسی، بڑا سوٹ کیس یا بیگ جس کا وزن سامان سمیت کسی صورت 30 کلو گرام سے زیادہ نہ ہو، بصورت دیگر کو اضافی کرایہ ادا کرنا پڑے گا۔ ممنوع اشیاء۔ سعودی عرب میں ہر قسم کی منشیات مثلا چرس، افیون، ہیروئن اور خواب آور ادویات لے جانا ممنوع ہے، اور اگر کسی کے سامان سے برآمد ہو جائے تو نہایت کڑی سزائیں یا سزائے موت دی جاتی ہے۔ لہذا عازمین حج کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ کسی کا دیا ہوا سامان اپنے ہمراہ نہ لے کر جائیں اور اپنے سامان کو بھی تالا لگا کر اپنی نظروں کے سامنے حفاظت سے رکھیں۔ طبی معائنہ اور ویکسینیشن۔ متعلقہ حاجی کیمپ میں اپنا طبی معائنہ کروائیں، اور اگر آپ کچھ مخصوص ادویات مسلسل استعمال کر رہے ہیں تو اس کا اندراج علاج کی کتاب میں کروائیں اور اس کی مناسب تعداد حاجی کیمپ سے پیک کروا کر اپنے ہمراہ لازمی لے جائیں۔ پولیو ویکسینیشن، گردن توڑ بخار اور نزلہ سے بچاؤ کا ٹیکہ لگوا کر ویکسینیشن کارڈ میں اس کا اندراج لازمی کروائیں۔ یہ کارڈ سعودی عرب آمد کے موقع پر چیک کیا جا سکتا ہے۔ حج ایک مشکل اور جسمانی مشقت والی عبادت ہے، لہذا روزانہ کم از کم 5 کلومیٹر پیدل چلنے کی مشق کریں۔ عبادت میں یکسوئی کے لیے کم اور سادہ غذا کی عادت ڈالیں۔
शनाख्त। तमाम आज़मीन हज अपने सूटकेस या बैग पर शनाख्त के लिए हाजी कैंप से मिलने वाले स्टिकर पर अपना नाम, पासपोर्ट, फोन, बिल्डिंग और मकतब के नंबर वाज़े अंदाज में लिखकर बैग पर चिपकाएं और बैग के अंदर भी किसी गुमशुदा सामान मिलने की सूरत में शोबाए गुमशुदगी और बाजियाबी आपसे राब्ता कर सके। तमाम मर्द अपने एहराम पर और खवातीन स्कार्फ पर शनाख्त के लिए पाकिस्तानी परचम का कैंपों से मुफ्त मुहैया किया जाता है। खवातीन सऊदी अरब में क़याम के दौरान अबाया लाजमी पहने, कांच की चूड़ियां और ऊंची हील वाले जूते साथ लेकर मत जाएं। तमाम आज़मीन हज को हिदायत की जाती है कि अपने मकतब के कार्ड और शनाख्ती लॉकेट हर वक्त पहने रखें। ये आपके पासपोर्ट का नेमुल बदल है। रास्ता भूलने की सूरत में मुआवनीन हुज्जाज इनकी मदद से आपकी दुरुस्त रहनुमाई कर सकेंगे। एहराम बांधने से पहले। एहराम बांधने से कबल नाखून तराशना, गैर जरूरी बाल साफ करना और गुस्ल करना सुन्नत है। मुमकिन हो तो बदन पर खुशबू लगाएं। मर्दों का एहराम सिर्फ 2 सादा चादरें हैं। एक तहबंद की तरह नाव से ऊपर बांधकर लटका ले, मजबूती के लिए बेल्ट भी बांध ले और दूसरी चादर ऊपर ओढ़ ले। खवातीन का एहराम आम लिबास के ऊपर अबाया और स्कार्फ है, जिससे सर के बाल भी ढके हुए हो। सिर्फ हाथ और चेहरा खुला होना चाहिए। अगर मकरूह वक्त ना हो तो 2 रकत नफल बराए एहराम अदा करें और उम्रा की नीयत करते हुए खवातीन धीमी आवाज में जबकि मर्द ऊंची आवाज में 3 बार तलबीह पुकारें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। बेशक हम तेरे ही लायक हैं, सारी नेमतें तेरी ही दी हुई हैं और बादशाही तेरी ही है, तेरा कोई शरीक नहीं। तलबीह पुकारने के साथ ही एहराम की पाबंदियां आप पर लाजम हो जाएंगी। मसलन शिकार करना या शिकार में मदद करना, दरख्त, घास, पौधे काटना, जूं वगैरह मारना, नाखून या जिस्म के बाल काटना, खुशबू का इस्तेमाल, अज़दवाजी ताल्लुकात, मर्दों के लिए सिला हुआ कपड़ा और टोपी वगैरह पहनना, बंद जूते, मोजे पहनना वगैरह, ये सब काम हालत एहराम में ममनू है। इनकी खिलाफ वर्जी गुनाह है और कुफ्फारा के लिए बाज सूरतों में बुदना, दम या सदका अदा करना वाजिब होता है। घर से एयरपोर्ट के लिए रवानगी। आज़मीन हज वजारत मजहबी अमूर की हिदायत के मुताबिक या अपनी परवाज की रवानगी से कम अज कम 6 घंटे कबल अपने घर से बराह रास्त एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जो आज़मीन हज अपने मुतल्लका हाजी कैंप में मुकीम हो, उनके लिए एयरपोर्ट जाने के लिए बसों का इंतजाम होगा। अगरचे एयरपोर्ट के लाउंज में एहराम बांधने की सहूलत मौजूद होती है, ताहम रश से बचने के लिए जद्दा रवाना होने वाले आज़मीन हज को हिदायत की जाती है कि वो अपने घरों या हाजी कैंपों से ही एहराम बांधकर एयरपोर्ट पहुंचे। ताहम एहराम की नीयत और 2 नफल घर पर या एयरपोर्ट जहां आसानी मुयस्सर हो पढ़ लें। बराह रास्त मदीना मुनव्वरा परवाज वाले आज़मीन हज सादा कपड़ों में ही एयरपोर्ट पहुंचेंगे और मदीना क़याम के बाद मक्का मुकर्रमा रवानगी के वक्त एहराम बांधेंगे। प्राइवेट स्कीम के आज़मीन हज अपना वीजा लगे पासपोर्ट और टिकट अपने हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर से हासिल करके उसकी हिदायत के मुताबिक अमल करें। अपने साथ हज पैकेज के मुआहदे की कॉपी लाजमी रखें ताकि उससे इनहिराफ की सूरत में ग्रुप ऑर्गेनाइजर के खिलाफ
कार्रवाई की जा सके। सिर्फ वजारत से मंजूर शुदा हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर से ही हज मुआहिदा करें ताकि धोखेबाजों से बच सकें। सामान की बुकिंग और बोर्डिंग कार्ड का हसूल। एयरपोर्ट की इमारत में दाखिल होने के बाद कस्टम हुक्काम आपका सामान चेक करेंगे। चेकिंग से फारिग होने के बाद अपनी मुतल्लका परवाज के काउंटर पर अपना सामान जमा करवाकर टैग और बोर्डिंग कार्ड हासिल कर लें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आपने हाजी कैंप से मिलने वाले स्टिकर को बैग पर अच्छी तरह चस्पा कर दिया है और एयरलाइन के अमले ने आपके सामान पर शनाख्ती टैग भी लगा दिया है। अब आप अपने दस्ती सामान के हमरा इमिग्रेशन काउंटर से गुजरकर मुसाफिरों अभी तक एहराम की नियत नहीं की तो यहाँ मौजूद मस्जिद में 2 नवाफिल अदा करके एहराम की नियत कर लें, क्योंकि जहाज में वजू करना या एहराम तब्दील करना इंतहाई मुश्किल अमर है। जब जहाज में जाने का ऐलान हो तो कतार बनाकर जहाज की जानिब रवाना हो। जहाज में अपनी सीट के ऊपर मौजूद खाने में अपना दस्ती बैग रखकर इत्मीनान से बैठे और अमले की हिदायत को गौर से सुने और इसके मुताबिक अमल करें। दौरान परवाज जिक्र अज़कार और तलबीह पुकारते रहें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जद्दा या मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट। जद्दा या मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर लैंड करते ही सबसे पहले आपका वास्ता सऊदी इमिग्रेशन हुक्काम से पड़ेगा, जो आपके पासपोर्ट चेक करने के बाद दाखिले की मोहर लगाएंगे। यहाँ काफी वक्त सर्फ हो सकता है। इमिग्रेशन से फारिग होकर मखसूस रास्तों से होते हुए आप एक बड़े हॉल में पहुंचेंगे। सऊदी हुक्काम की रहनुमाई में यहीं से आपको अपना सामान मिलेगा, जो आपकी आमद के साथ ही कन्वेयर बेल्ट के जरिए इस हॉल के बैरूनी हिस्से में पहुंचा दिया जाता है। अपना सामान वसूल करने के बाद आपको सऊदी कस्टम्स के अमले से वास्ता पड़ेगा। सामान की चेकिंग के दौरान कस्टम्स के अमले को मुतमईन किए बगैर कोई भी मुसाफिर एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकता। खाली जगह नजर आ रही है, आप लोग बैठते जाएं। हाजी साहब साइड पे हो जाए, साइड पे। गुजारिश है कि आपका सामान आ गया, सामान क्या कर लें। अगर आपका सामान आ गया तो उठाकर अपने पास रख लें, अपना सामान पूरा कर लें। इस हॉल से बाहर निकलने पर सब्ज पाकिस्तानी परचम थामे दफ्तर अमूरे हुज्जाज पाकिस्तान का अमला आपको खुशामदीद कहेगा और आपको बसों की इंतजारगाह तक पहुंचाएगा। तमाम बसें परवाज, मकतब और बिल्डिंग की तरतीब के लिहाज से रवाना होंगी, लिहाजा अपनी बारी का इंतजार करें और इन तमाम मराहल को सब्र तहम्मुल और खंदा पेशानी से तय करें। कतार बनाकर बसों में सवार हों और इस बात का इत्मीनान कर लें कि आपका सामान भी इसी बस में लोड कर दिया गया है। बसों में सवार होते वक्त हमेशा खवातीन और बुजुर्ग आज़मीन हज को तरजीह दें। रिहाइश गाहें। सऊदी तालीमात के मुताबिक खवातीन और मर्दों को अलहदा कमरों की अलॉटमेंट ग्रुपों की बुनियाद पर पाकिस्तान से ही कर दी जाती है, जिसकी तब्दीली सऊदी अरब में नामुमकिन है। रिहाइश गाहों पर मौजूद मुआवनीन आपकी मुख्तस रिहाइशों पर पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। मुनासिब होगा कि अपने कमरे में सामान रखने के बाद हरम की तरफ रवाना होने से पहले कुछ देर आराम कर लें, वरना थकावट की वजह से इबादत का लुत्फ नहीं आएगा। हरम की तरफ रवाना होने से कबल अपने गले के लॉकेट और मकतब के कार्ड जरूर हमरा रखें, जबकि अपनी बिल्डिंग और इलाके का नाम, पता, फोन नंबर लिखकर अपने पास भी रखें। हरम में दाखिल होते वक्त गेट का नाम और नंबर
याद रखें। पहला उम्रा। उम्रे के 2 फराइज हैं। उम्रे की नीयत से एहराम बांधकर तलबीह पुकारना और तवाफ करना यानी बैतुल्लाह के गिर्द 7 चक्कर लगाना उम्रे के 2 वाजिबात हैं। सफा मरवा की सई करना और हल्क या कसर करना। सुन्नत के मुताबिक हरम पाक में दाखिल हों और खाना-ए काबा पर पहली नजर पड़ते ही हाथ उठाकर खूब दुआएं मांगे, क्योंकि ये दुआओं की कबूलियत का खास मौका है। इसके बाद हजरे अस्वद की सीध में आए, जिसकी निशानदही सब्ज ट्यूबलाइट के जरिए भी की गई है। यहाँ तलबीह पुकारना बंद कर दे। मर्द एहराम की ऊपर वाली चादर सीधे हाथ की बगल से निकालकर बाएं कंधे पर डाल दे। यूं उनका दायां कंधा खुला हो जाएगा। इसे इस्तबाह कहा जाता है। यहां खड़े होकर खाना-ए काबा की तरफ मुंह करके तवाफ की नीयत करें। ऐ अल्लाह, मैं आपकी रजा के लिए उम्रे के तवाफ की नीयत करता या करती हूं। इसे मेरे लिए आसान फरमा दीजिए और कबूल फरमा लीजिए। इसके बाद बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहते हुए हजरे अस्वद की तरफ हथेलियां करके चूम लें। इसे हजरे अस्वद का इस्तलाम कहा जाता है। इसके बाद तवाफ शुरू कर दें और दौराने तवाफ मसनून दुआएं ज़बानी या देख कर पढ़ें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ये दुआ रुकने यमानी और हजरे अस्वद के दरमियान पढ़ना सुन्नत है। नियत तवाफ या दीगर मुकामात पर पढ़ी जाने वाली दुआओं के अरबी अल्फाज अगर याद ना हो तो जो भी दिल में आए मांगे, जिस जुबान में जी चाहे मांगे। आपको खाना-ए काबा के गिर्द 7 चक्कर पूरे करने हैं और हर चक्कर के बाद इस्तलाम करना है। मर्द सिर्फ पहले 3 चक्रों में सीना तान कर तेज तेज चलेंगे, जिसे रमल कहा जाता है। ताहम भीड़ की सूरत में तेज चलना जरूरी नहीं। तवाफ के बाद 2 रकत नमाज वाजिबुल तवाफ मुकामे इब्राहिम की सीध में अदा करेंगे। अगर यहाँ मौका ना मिले तो ये हरम में कहीं भी अदा हो सकते हैं। मुताफ के चारों तरफ ठंडे और सादा जमजम की टूटियां और कूलर लगे हुए। रूह खड़े होकर जी भरकर जमजम पिएं और खूब दुआएं मांगे। जमजम पीने के बाद सफा पहाड़ी की तरफ सई करने के लिए रवाना हो जाएं, जिसकी निशानदही के लिए अरबी और उर्दू में बोर्ड लगाए गए हैं। सफा की तरफ जाते हुए हजरे अस्वद का इस्तिलाम करना सुन्नत है। सफा मरवा की सई। सफा पहुंचकर आप सई की नीयत करें और मरवा की तरफ चलें। रास्ते में जहां सब्ज लाइट शुरू हो तो वहां से मर्द उस वक्त तक भागें जब तक सब्ज लाइट खत्म न हो जाए। ताहम खवातीन अपनी मामूल की रफ्तार से चलें। मरवा तक पहुंचकर आपका 1 चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। यहां किबला रू होकर खूब दुआएं मांगने के बाद दोबारा सफा की तरफ रवाना हो। सब्ज लाइटों के दरमियान भागकर और बाकी मकाम से मामूल की रफ्तार से चलकर आप दोबारा सफा पहुंच जाएंगे। इस तरह आपके 2 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे। इस तरह 7 चक्करों के बाद आपकी सई मरवा पर मुकम्मल होगी। हल्क या कसर। सई के बाद मर्द हजरात हल्क यानी सर के बाल मनवाकर या कसर करवाकर हालत एहराम से बाहर आएंगे। औरतें कसर यानी सारी चुटिया पकड़कर सर के दाएं बाएं और पीछे 3 हिस्से करके हर हिस्से से उंगली के एक पोर के बराबर या कुछ ज्यादा बाल काटकर हालत एहराम से
बाहर आ जाएंगी। यूं आपका उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। सफरी सहूलतें। सरकारी हज स्कीम के तहत आए हुए हुज्जाज की रिहाइशगाहें मक्का मुकरमा में अजीजिया नामी बस्ती में होंगी, जो हरम पाक से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। बिल्डिंग के बाहर हरम आने जाने के लिए जदीद एयर कंडीशन बसें 24 घंटे वहां मौजूद होंगी। अगर आप चाहें तो 5 नमाजें हरम में अदा कर सकते हैं। आपकी रिहाइशगाह, बस स्टॉप और हरम के पास पाकिस्तानी मुआवनीन आपकी रहनुमाई के लिए हर वक्त मौजूद होते हैं। हज से पहले हरम में बहुत ज्यादा रश के बायस सऊदी हुकूमत 5 ta 15 जिलहज तमाम बसों की आमदोरफ्त बंद कर देती है। लिहाजा इन दिनों में हरम जाने, दीगर ज़ियारात या गैर जरूरी सफर से परहेज करें और नमाज अपने इलाके के करीबी मस्जिद में अदा करें। खुसूसन आखिरी नमाज जुमा के लिए ख्वातीन और बच्चे हरम पाक जाने से गुरेज करें। मदीना मुनव्वरा की हाजिरी। मुहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है। मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी हज का रुकन तो नहीं, लेकिन आशिकाने मुस्तफा के लिए ये सफर बहुत बड़ी सादत है। सरकारी स्कीम के आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा रवानगी के शेड्यूल के बारे में मुआवनीन हुज्जाज के जरिए दफ्तर मदीना रवानगी से आगाही हासिल करें और इस पर सख्ती से अमल करें। जो हुज्जाज हज से पहले मदीना मुनव्वरा नहीं गए थे, वो अपनी पाकिस्तान रवानगी से तकरीबन 10 दिन कबल रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी और दीगर ज़ियारात के लिए मदीना मुनव्वरा रवाना कर दिए जाते हैं। मदीना मुनव्वरा पहुंचकर गुस्ल के बाद बेहतरीन कपड़े ज़ेब-ए-तन करके दुरूद पाक का विर्द करते हुए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाएं और 2 रकत नमाज नफल शुक्राने के बाद बाबुल इस्लाम के रास्ते रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दें कि अल्लाह ताला ने आपको 2 जहानों के सरदार के दरबार में हाजिरी की तौफीक बख्शी। मदीना मुनव्वरा और खुसूसन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आदाब हाजिरी का खास ख्याल रखें। रियाजुल जन्ना, जिसकी निशानदही सब्ज कालीनों के जरिए की गई है, में नवाफिल और दुआ का खुसूसी एहतमाम करें। मदीना मुनव्वरा की दीगर ज़ियारात में जन्नतुल बकी, मस्जिद कुबा, मस्जिद किबलतैन, मस्जिद जुमा, मस्जिद गुमामा, ग़ज़वा-ए उहद और खंदक के मुकामात वगैरह शामिल हैं। बेहतर है खजूर और दूसरी अशिया की खरीदारी मदीना मुनव्वरा से कर लें ताकि हिजाज़ मुक़द्दस में अपने क़याम को कीमती बनाएं और बाजारों में और मार्केटों में ज्यादा वक्त गुजारने से परहेज करें। अगर सामान वजन की मुकर्रर हद से जायद हो गया तो एयरलाइन को इजाफी किराया अदा करना पड़ेगा। मुश्तरका रिहाइश, सफाई और खाना। सरकारी स्कीम के हुज्जाज मुश्तरका रिहाइश गाहों में कयाम करेंगे, जहां गुस्ल खाने, किचन और वॉशिंग मशीनें भी मुश्तरका होंगी। तमाम सरकारी हुज्जाज को खाना उनकी रिहाइश गाहों पर ही फ्राहम किया जाएगा। इस मकसद के लिए मुकर्रर वक्त पर डाइनिंग हॉल आएं और यहीं में खाना लेकर जाना मना है। अपने हिस्से से ज्यादा खाना ना लें। दूसरे आज़मीन हज के हकूक का ख्याल रखें। अपने कमरों में सफाई का खास ख्याल रखें। खाने का जायका अक्सरियत के म्यार को मद्देनजर रखकर बनाया जाता है, ताहम इनफरादी सतह की पसंद नापसंद पर सब्र व तहम्मुल से काम लें और मुआवनीन हुज्जाज से ताउन करें। सऊदी अरब में बेशतर रिहाइश गाहों में मगरबी तर्ज के वॉशरूम्स और कमोड नस्ब हैं। आज़मीन हज से गुजारिश है कि कमोड का दुरुस्त इस्तेमाल सीख कर जाएं ताकि किसी किस्म के नुकसानात या नापाकी का अंदेशा ना हो।
صفائی کا خاص خیال رکھیں اور دوسرے عازمین حج کے لیے زحمت کا باعث نہ بنیں۔ نیز گداگری یا بھیک مانگنے کی بھی ممانعت ہے۔ طبی سہولیات۔ آب و ہوا کی تبدیلی، انفیکشن یا بخار، نزلہ، گلے کی خرابی اور بعض اوقات شدید تھکن کی وجہ سے جسمانی درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں وزارت مذہبی امور اور دفتر امور حجاج پاکستان نے آپ کی رہائش گاہوں کے قریب ڈسپنسریاں قائم کی ہیں جہاں پاکستانی ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف آپ کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے موجود ہے۔ اس کے علاوہ مکہ اور مدینہ منورہ میں ایک بڑا ہسپتال قائم کیا جاتا ہے اور ٹیسٹوں کی تمام سہولیات حجاج کرام کو مفت مہیا کی جاتی ہیں۔ ضرورت کے تحت ایمبولینس سروس بھی مفت مہیا کی جاتی ہے۔ سعودی قوانین کی پاسداری۔ سعودی عرب میں قوانین انتہائی سخت ہیں۔ خانہ خواستہ اگر کوئی حاجی قانون کی خلاف ورزی پر پکڑا گیا تو حکومت پاکستان اور پاکستان حج مشن اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سعودی قوانین کا احترام کیا جائے اور سعودی اہلکاروں کی ہدایت پر سختی سے عمل کریں۔ کوئی گری پڑی چیز ہرگز نہ اٹھائیں کیونکہ یہاں زمین پر گری ہوئی چیز اٹھانے کا مطلب چوری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سزا کے ساتھ ساتھ حج سے بھی محروم ہو جائیں۔ یہاں عورتوں کے اکیلے پھرنے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اس لیے اگر عورتوں کو باہر جانا ہو تو ضروری ہے کہ سعودی رسم و رواج کے مطابق اپنے محرم کے ساتھ اور عبایا اوڑھ کر ہی باہر نکلیں۔ حرم میں اونچی آواز میں باتیں اور موبائل فون کا بے جا استعمال نہ کریں۔ حرم پاک کے تقدس کے پیش نظر موبائل فون سے تصاویر یا سیلفی بنانے کی سخت ممانعت ہے۔ دفتر امور حجاج پاکستان۔ حجاج کی سہولت کے لیے وزارت مذہبی امور کے زیر انتظام سعودی عرب میں قائم دفتر امور حجاج میں بہت سے شعبے کام کرتے ہیں۔ ان میں مرکزی انتظامی دفتر، MCO 24 گھنٹے مفت ہیلپ لائن، شعبہ شکایات، دفتر مدینہ روانگی، شعبہ گمشدگی و بازیابی، شعبہ رہائش، ٹرانسپورٹ و خوراک، شعبہ امراض و موت، شعبہ مانیٹرنگ اور IT شامل ہیں۔ حجاج کرام کی فوری رہنمائی کے لیے ان کی رہائش گاہوں پر بھی معاونین حجاج تعینات ہوتے ہیں، جبکہ ہر رہائشی سیکٹر میں ایک سیکٹر آفس کام کرتا ہے۔ قیام کے دوران ہمیشہ اپنے گروپ کے ساتھ رہیں اور گم ہو جانے کی صورت میں اپنے موبائل فون، حرم گائیڈز یا معاونین حجاج کے ذریعے مدد حاصل کریں۔ حج کی تیاری اور روانگی کے لیے اہم ہدایات۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں کیونکہ اب حج کا مشکل ترین مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اب تک آپ نے سعودی عرب میں جو وقت گزارا ہے وہ یقیناً وزارت مذہبی امور کے حسن انتظام کی وجہ سے بغیر کسی پریشانی اور مشکل کے گزرا ہوگا۔ اب آپ مشاعر مقدسہ کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں عازمین حج ایک جگہ جمع ہوں گے اور ان کو موسم کی شدت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب تک ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم بآسانی پیدل چل سکتے ہیں کیونکہ بس آپ کو حرم کے بالکل قریب اتارتی تھی اور بس سٹاپ سے حرم پیدل جانا کوئی سفر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اب اگلے 5 دن آپ کے پاس آرام کے لیے بالکل وقت نہیں ہوگا۔ مینا اور عرفات کے مقادب کے نقشے آپ کو یہ نقشے مشاعر میں بھی جگہ جگہ نصب کیے گئے ہیں۔ وزارت نے مکتب اور بلڈنگ کی تلاش کے لیے اسمارٹ فونز کی موبائل ایپ
पाक हज मुआवन भी तैयार की है। इनसे खुद भी आगाही हासिल करें और साथ ही हुज्जाज की भी मदद करें। मुकद्दस मुकामात यानी हरम, मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात की सफाई का खास ख्याल रखें। खाली बोतलें, रैपर और कूड़ा करकट रास्तों में फेंकने की बजाय मखसूस कूड़ादान में डालें। हज के 5 दिन की मुनासबत से अपने साथ कम से कम सामान रखें जो कि कंधे पर लटकाने वाले बैग में बआसानी आ जाए। मसलन एहराम की इजाफी चादर, 1 जोड़ा कपड़े और जूता, मसवाक, फोन चार्जर, मुज़दलिफ़ा के लिए मैट, छोटा तकिया वगैरह। अब आप अपनी एयर कंडीशन रिहायशों से निकल कर मिना के खैमा बस्ती और मैदान अरफात मुंतकिल होंगे, जहां शदीद गर्मी के मौसम में हजारों बसों के चलने की वजह से दिन के औकात में रूम कूलर्स के बावजूद गर्मी और हब्स बहुत बढ़ जाता है। मिना और अरफात में महदूद जगह के बायस आपको नरमो गुदाज बिस्तरों की बजाय जमीन पर बिछे 1.5 से 2 फुट चौड़े मैट्रेस पर वक्त गुजारना होगा। इसके लिए ज़हनी तौर पर खुद को तैयार रखें। दूसरे हुज्जाज के साथ खंदा पेशानी के साथ पेश आए। अय्याम हज में शदीद रश के बायस खाना मुश्किल से ताखीर से मिलने का अंदेशा होता है। नीज खाने के जायके में भी फर्क आ सकता है। सब्र एहतियातन खुश खुराक मसलन निम्को, बिस्किट, छोटे केक, चने, जूस और पानी वगैरह अपने साथ रखें। वजू और रफा हाजत की जगहों पर हुज्जाज का शदीद रश होता है। साथ ही हुज्जाज की आसानी के लिए इन जगहों पर सफाई और पाकीज़गी का खास ख्याल रखें। पानी का गैर जरूरी इस्तेमाल न करें। अय्याम हज में अपनी खुराक कम से कम रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत में गुजरे। हज के फराइज व वाजिबात। हज के 3 फराइज हैं। किसी एक के छूट जाने से हज नहीं होगा। हज की नीयत से एहराम बांधकर तलबी पुकारना, 9 जिलहज को वकूफे अराफात और तवाफे ज़ियारत। हज के 6 वाजिबात हैं। किसी वाजिब के रह जाने से दम देने से तलाफी हो जाएगी। वकूफे मुज़दलिफ़ा, रमी, कुर्बानी, हल्क या कसर, सई, तवाफे वेदा। मिना रवानगी। हज 5 दिनों का होता है, 12 जिलहज को खत्म होता है। 8 जिलहज या 7 की रात को आप अपनी रहाइश से एहराम बांधकर और हज की नीयत करके मिना रवाना होंगे। मकतब के जिम्मेदार रवानगी से कबल आज़मीन हज को मिना कार्ड भी देंगे, जिस पर खैमा नंबर, मकतब और दूसरी मालूमात दर्ज होती हैं। दौरान हज इस लॉकेट को पहनकर रखना इंतहाई जरूरी है। रिहाइशगाह से मिना रवानगी के लिए आपका मकतब बसों का इंतजाम करता है। आज़मीन हज को बसों पर मुकर्रर वक्त से काफी पहले भी सवार करवाया जा सकता है और सड़कों पर शदीद रश के बायस तवील इंतजार की जहमत भी उठानी पड़ सकती है। अजीजिया से मिना का फासला 3 से 5 किलोमीटर है। हुज्जाज ग्रुप की शक्ल में 1 से 1.5 घंटे में बासानी पैदल भी मिना पहुंच सकते हैं। मिना। 8 जिलहज को आप मिना में ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाजें अदा करेंगे। सिर्फ हज के दिनों में आबाद होने वाला खैमों का शहर मिना 100 से ज्यादा मकातब में तकसीम है। मिना से मुत्तसिल हरम की जानब जुमरात यानी 3 अलामती शैतान वाक़े हैं। मिना से मस्जिद हराम तक मखसूस सरूंगों के जरिए
पैदल रास्ता तकरीबन 8 किलोमीटर बनता है। हज के दिनों में प्राइवेट गाड़ियों के महंगे किराए और सड़कों पर शदीद रश के बायस मिना से हरम जाने और आने के लिए ये रास्ता सबसे मुनासिब है। मिना की दूसरी जानब मुज़दलिफ़ा और मैदान अरफात वाक़े हैं, जो बिल तरतीब तकरीबन 4 और 14 किलोमीटर दूरी पर है। रात मिना में ही क़याम होगा। 9 ज़िलहज की फजर मिना में अदा करके तुलुए आफताब के बाद अरफात की तरफ रवानगी होगी। मुशायर में आमदोरफ्त के तरीके। मना, मुज़दलिफ़ा और अरफात के दरमियान एक जदीद और तेज रफ्तार मुशायर ट्रेन चलती है, लेकिन इसकी कुल गुंजाइश 3 लाख हुज्जाज तक महदूद है। नीज सऊदी तालीमात के मुताबिक ट्रेन टिकट सिर्फ स्टेशन के नजदीकी मकातब को मिलता है। ट्रेन के जरिए जाने वाले आज़मीन हज के लिए 3 स्टेशन बनाए गए हैं। ट्रेन टिकट के मुताबिक अपने मखसूस स्टेशन से ही सवार हो। ज्यादातर हुज्जाज बसों के जरिए या पैदल सफर करते हैं। बसों की रवानगी में ताखीर हो सकती है। इस मौके पर नहायत सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। बहुत ज़ईफ और माजूर अफराद पाकिस्तान से ही व्हील चेयर का बंदोबस्त कर लें और कम रश वाले औकात या मुतबादल जगहों यानी तवाफ, सई और रमी के लिए ऊपरी मंजिलों का इंतखाब करें। मुशायर ट्रेन पर सवार होने के लिए मखसूस लिफ्टों का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर मुफ्त हेल्पलाइन, मुआवनीन हुज्जाज या मकतब के नुमाइंदों से रहनुमाई हासिल करें। याद रखें, मुशायर ट्रेन के स्टेशन की तरफ जाने वाले रास्तों पर अमूमन बहुत ज्यादा रश होता है और ट्रेन पर सवार होने और उतरने के लिए काफी वक्त लग जाता है। अपने साथ पानी और छतरी लाजमी रखें। औरतों और ज़ईफों का खास ख्याल रखें और सवार होते वक्त उन्हें तरजीह दें। किसी भी हंगामी हालत में घबराहट का शिकार होने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता मुतासरा जगह से दूर हो जाए। मदद के लिए गले के लॉकेट पर दिए गए इमरजेंसी फोन नंबर्स पर राब्ता करें। किसी भी सूरत में धक्कम पेल न करें, क्योंकि ऐसा करने से किसी कमजोर या ज़ईफ की जान भी जा सकती है। दूसरे आज़मीन हज का ख्याल रखें। याद रहे कि किसी मुसलमान की इज्जत और हुर्मत को अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह की हुर्मत से बरतर करार दिया है। वकूफ़े अरफात। 9 ज़िलहज का वकूफ़े अरफा हज का रुकन आज़म। अगर ये रह जाए तो हज नहीं होता। ताहम गुरूब आफताब से पहले पहले मैदान अरफात में पहुंचने वाले का वकूफ हो जाता है। मस्जिद निमरा में मौजूद हुज्जाज खुतबा हज सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाजें इमाम के पीछे इकट्ठी अदा करते हैं। शदीद रश के बायस ज्यादातर हुज्जाज मस्जिद निमरा नहीं पहुंच पाते और अपने खैमों में ही बाजमात नमाज अदा करते हैं और फरागत के बाद अपने रब के हजूर मगरब के वक्त तक मनाजात करते हैं। ये दिन गुनाहों और खताओं की मुआफी का दिन है। साथ ही साथ ये हश्र के मैदान में अल्लाह के सामने हाजिरी की याद दिलाने का जरिया भी है। गुरूब आफताब मुकम्मल होते ही तमाम हुज्जाज नमाज मगरिब पढ़े बगैर मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाते हैं। याद रखें कि मैदान अरफात से वापसी पर शदीद रश और खास तौर पर औरतों, ज़ईफों और माजूरों की हिफाजत के पेश नजर मुख्तलिफ मकातब के हुज्जाज की नक़्ल हरकत के लिए औकात और तरीक़ाकार पहले से तय कर लिए जाते हैं। हुज्जाज के लिए लाजिम है कि वो अपने ग्रुप के साथ और मकतब के नुमाइंदों की हिदायत के मुताबिक दिए गए वक्त पर बस या ट्रेन के जरिए मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाए। रश की वजह से ये फासला 3 से 5 घंटों में तय होता है। इस मौके पर सब्र तहम्मुल और ईसार कुर्बानी से काम लें।
अरफात से मुज़दलिफ़ा का पैदल सफर बआसानी 3 घंटे में तय किया जा सकता है। वकूफ़े मुज़दलिफ़ा। मुज़दलिफ़ा पहुंचकर और इशा की नमाजें इकट्ठी अदा करने के बाद शैतानों को मारने के लिए कम अज कम 70 अदद कैंकरियां इकट्ठी करते हैं। याद रहे कि मुज़दलिफ़ा की रात मुश्किल और दुश्वार होती है। इस दौरान सख्त गर्मी, बेआरामी और सफर की सोबतों के पेश नजर बाज हुज्जाज के लहजे में तल्खी का अंसर गालिब आ जाता है। यही आजमाइश की घड़ी है। अपने रवैये में शाइस्तगी बरकरार रखें, बेजा शिकवे शिकायत से गुरेज करें और एक दूसरे को बुरा भला ना कहें। अगला दिन भी नहायत मुशक्कत तलब होगा, इसलिए मौका मिलने पर जरूर आराम कर लें। हुज्जाज 10 ज़िलहज की सुबह नमाज फजर अदा करने के बाद फिर दुआओं में मशगूल हो जाते हैं और वकूफ़े मुज़दलिफ़ा मुकम्मल करके तुलुए आफताब के बाद पैदल, बसों या ट्रेन के जरिए मिना की तरफ कूच करते हैं। मुज़दलिफ़ा से मिना का फासला 4 किलोमीटर है। मिना पहुंचने के बाद फालतू सामान रखने या आराम की गरज से अपने खैमे में जा सकते हैं। रमी जुमरात। 10 ज़िलहज को हुज्जाज ने सिर्फ बड़े शैतान को 7 अदद कैंकरियां मारनी है। आमतौर पर हुज्जाज ज़वाल के बाद या ज़ुहर की नमाज के बाद कंकरियां मारने के लिए रवाना होते हैं, लेकिन रश के पेश नजर पहले भी रवाना हो सकते हैं। ज़ईफ मर्दो ख़वातीन की तरफ से इनके वकील भी कंकरियां मार सकते हैं। हुज्जाज को चाहिए कि जुमरात की तरफ जाने वाले रास्तों से आगाही हासिल करें। सिर्फ मकतब के मुकर्रर करदा वक्त पर और ग्रुप के साथ रवाना हो। गुम हो जाने की सूरत में रास्तों पर तैनात सब स्काफ और पाकिस्तानी परचम थामे मुआवनीन हुज्जाज या रजाकारों से रहनुमाई हासिल करें। कुर्बानी, खल्क, कसर। कंकरियां मारने के बाद हुज्जाज सुन्नत इब्राहिमी के तहत कुर्बानी करते हैं। लाखों हुज्जाज के लिए कुर्बानी खुद करना या कुर्बान गाह तक जाना बहुत दुश्वार होता है। जो हुज्जाज अपने हाथ से सऊदी महकमों के जरिए कुर्बानी के पैसे जमा करवाना चाहें, उनकी सहूलत के लिए हरम के नजदीक कुर्बानी के कूपन हासिल करने के लिए जगह जगह बूथ भी कायम है। शख्स को कुर्बानी के लिए पैसे मत दें। बेहतर है कि हज दरखास्तों के साथ ही वजारत मजहबी अमूर या सऊदी महकमों के जरिए पैसे जमा करवाए जाएं। वो आपको कूपन पर कुर्बानी का वक्त भी बता देंगे। कुर्बानी 10 ज़िलहज या 11 ज़िलहज को भी होती है। हुज्जाज कराम को चाहिए कि जब तक कुर्बानी का वक्त न आ जाए उस वक्त तक हल्क या कसर न करवाए और हालत एहराम ही में रहें। कुर्बानी के बाद हुज्जाज जुमरात पर हरम के नजदीक दुकानों से हल्क या कसर करवाकर हालत एहराम से बाहर आ जाएं। तवाफ़े ज़ियारत। हुज्जाज कराम मसनून गुस्ल के बाद सादा कपड़े पहन लेते हैं और फिर हज के आखिरी फर्ज तवाफ़े ज़ियारत के लिए हरम रवाना होते हैं। सऊदी हुक्काम दौरान हज मिना में हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला बंद कर देते हैं। ज्यादातर हुज्जाज मिना से हरम आने जाने के लिए शेड और सुरंगों वाला पैदल रास्ता इख्तियार करते हैं, जो कि 4 किलोमीटर बनता है। ताहम मिना की हदूद से बाहर टैक्सी किराया पर मिल सकती है, लेकिन आम तौर पर 20 रियाल किराया लेने वाले ड्राइवर इन दिनों 200 रियाल तक तलब करते हैं। मुनासिब होगा कि कुछ हुज्जाज मिलकर टैक्सी करवा लें। हरम से वापसी पर भी टैक्सी आपको आएगी, वहां से अपने खैमे तक आपको पैदल आना पड़ेगा। तवाफ़े ज़ियारत के बाद हुज्जाज हज के फराइज़ से फारग हो जाते हैं, लेकिन इनका क़याम अभी मिना में ही होगा। 11, 12 और 13 ज़िलहज की रमी।
11 ज़ुल्हज को तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियां मारने के बाद हुज्जाज का क़याम मिना में होता है। अलबत्ता 12 ज़ुल्हज को दोबारा तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियां मारने के बाद हुज्जाज या तो मकतब की हिदायत के मुताबिक गुरूब आफताब से कबल मिना से निकलकर अपनी रहायशगाह वापस आ जाएंगे, या फिर अगले दिन यानी 13 ज़ुल्हज को भी रमी करने के बाद मिना से रवाना होंगे। मिना से वापस आने के बाद हज के तमाम मनासिक खत्म हो जाते हैं। तुआफ़े विदा, मक्का मुकरमा छोड़ने और अपने वतन रवाना होने से पहले प्यारे दोस्तों, पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि अगर आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।